जानिया सुनिया बिसर जानिया सुनिया
हरि हरि विपरे जन्म पुनैनु। एक पढ़ सकता हूँ। O Lord Hari, I have spent my life uselessly, having obtained a human birth and having next worshipped Radha and Krishna. I have knowingly drunk poison. गोलोक वृंदावन में दिव्य प्रेम का खजाना भगवान हरि के पवित्र नामों के सामूहिक जप के रूप में अवतरित हुआ है। उस जप के प्रति मेरा आकर्षण कभी उत्पन्न क्यों नहीं हुआ? मेरा दिन रात सांसारिकता के जहर की आग में जलता रहता है और मैंने उसे दूर करने का कोई उपाय नहीं किया है। भगवान कृष्ण जो व्रज के राजा के पुत्र हैं, सचिव भगवान चैतन्य के पुत्र बन गए और बलराम निताई बन गए। पवित्र नाम के उन सभी आत्माओं का उद्धार किया जो दीन और अभागे थे। दो पापी जगई और मदई उसके प्रमाण है। Fourth, O Lord Krishna, son of Nanda, accompanied by the daughter of Vrishabhanu, please be merciful to me now. Narottam Das says, O Lord, please do not push me away from your reddish lotus feet, for who is my beloved except for you? Very cool. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हम पढ़ रहे हैं कैंटो 4 चैप्टर 9 टेक्स्ट संख्या 33। देवीं मायामुपाश्रित्य प्रसुप्त इव भिन्नद्रे तप्य द्वितीये अपि असति भ्रातृव्यहृद्रुजा देवीं मायामुपाश्रित्य प्रसुप्त इव भिन्नद्रे तप्य द्वितीयेऽपि अस्ति भ्रातृव्यहृद्रुजा देवीं मायामुपाश्रित्य प्रसुप्त इव भिन्नद्रे तप्य द्वितीयेऽपि अस्ति भ्रातृव्यहृद्रुजा देवीं मायामुपाश्रित्य अशुक्त एव भिन्नद्रे तप्ये द्वितीये अप्यस्ति भ्रातृ अव्यहृद्रुजा देवीं मायामुपाश्रित्य सुप्त इव भिन्नदे तप्ये द्वितीये पश्यस्ति भ्रातृभृतव्यहृदरुजा देवीं मायामुपाश्रित्य प्रसुप्त इव भिन्नद्रे तप्ये द्वितीये अप्यस्ति भ्रातृव्यहृद्रुजा Word to word. देवीं
Devim of the personality of Godhead, of the personality of Godhead, Maya, the illusory energy, the illusory energy, Upashritya, taking shelter of, taking shelter of, Prasuptaha, dreaming while asleep, asleep, Iva, like, like Bhinnadre, having separated vision, Tapye, I lamented, Dvitiye, in the illusory energy, Api, although, Asati, temporary, Bratra, brother, Bratravya, enemy, Hrit, within the heart, Ruja, by lamentation. Translation, Dhruv Maharaj lamented, I was under the influence of the illusory energy, being ignorant of the actual facts. I was sleeping on her lap under a vision of duality. I saw my brother as my enemy, and falsely I lamented within my heart, thinking they are my enemies. Purport. Real knowledge is revealed to a devotee only when he comes to the right conclusion about life by the grace of the Lord. Our creation of friends and enemies within this material world is something like dreaming at night. In dreams, we create so many things out of various impressions in the subconscious mind, but all such creations are simply temporary and unreal. In the same way, although apparently we are awake in material life because we have no information of the soul and the super soul, we create many friends and enemies simply out of imagination. Srila Krishna Das Kaviraj Goswami says that within this material world or material consciousness, good and bad are the same. This material world, good and bad are the same. The distinction between good and bad is simply a mental concoction. The actual fact is that all living entities are sons of God or byproducts of His marginal energy. Because of our being contaminated by the modes of material nature, we distinguish one spiritual spark from another. That is also another kind of dreaming. It is stated in the Bhagavad Gita that those who are actually learned do not make any distinction between a learned scholar, a Brahman, an elephant, a dog, and a Chandal. They do not see in terms of the external body, rather, they see the person as spirit soul. By higher understanding, one can know that the material body is nothing but a combination of the five material elements. In that sense, also, the bodily construction of a human being and that of a demigod are one and the same. From the spiritual point of view, we are all spiritual spark, parts and parcels of the Supreme Spirit, God. Either materially or spiritually, we are basically one. But we make friends and enemies as dictated by the illusory energy. Dhruv Maharaj therefore said, Devim Mayam Upashritya. The cause of his bewilderment was his association with the illusory material energy. Om Ajnanatirmirandasya Jnananjana Chakshurumilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manovishnam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupam Kadamayyam Dadati Swayapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutapadakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatamvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Shri Vishakhamritamsha Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम। तो श्रीमद् भागवतम को सारे पुराणों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है और अमल पुराण है। इसके अंदर कोई भी दोष नहीं है और इसको ऐसा एक फल के साथ कंपेयर किया गया है जिसके अंदर न गुठली है न छिलका है, बस क्या है? रस, फल। हाँ, ऐसा फल खाया आपने? कौन सा होता है ऐसा फल? छिलका भी नहीं है, गुठली भी नहीं है। ऐसा यही भागवतम है। भागवतम ऐसा फल है जिसके अंदर रस ही रस है, रस ही रस है। तो शहतूत वैसे भी कहाँ मिलता है आजकल, बहुत महंगा हो गया। लेके आओ। हाँ ठीक है। अभी कौन सा फल हुआ है? इसकी भी घर पे दूध, दही, घी वगैरह है तो लेके आ सकते हो, तो मना नहीं करेंगे हम लोग। लेकिन असली होना चाहिए। तो श्रीमद् भागवतम वह है। अब श्रीमद् भागवतम खुद में तो कोई दोष है ही नहीं, वो तो है ही बात, उसमें कोई त्रुटि नहीं है श्रीमद् भागवतम, क्योंकि भगवान को रस ही रस है इसके अंदर। क्यों रस है? क्योंकि इसमें एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ भगवान को ग्लोरीफाई किया गया है, परम भगवान को। और अदर दूसरे वैदिक शास्त्रों में कर्म कांड, ज्ञान कांड, ये वाले सेक्शन भी है, कैसे यज्ञ करें जिससे हमारा भौतिक बेनिफिट हो, और ऐसी ऐसी आदि आदि चीजें भी दी हुई है। और लास्ट में थोड़ा बहुत भगवान का ग्लोरिफिकेशन भी थोड़ा बहुत कहीं कहीं चीज में किया हुआ है। लेकिन श्रीमद् भागवतम ऐसा ग्रंथ है जिसमें सिर्फ एक्सक्लूसिवली भगवान को ग्लोरीफाई किया गया है। हर एक वर्ड जो है वो भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है और ये भगवान का लिटररी इनकार्नेशन है। तो श्रीमद् भागवतम की तो महिमा ये है। अब श्रीमद् भागवतम ना सिर्फ खुद स्पॉटलेस है, यानी कि कोई इसमें दोष नहीं है। श्रीमद् भागवतम जो पढ़ता है उसके अंदर भी सारे दोष चले जाते हैं। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवा। जो डेली श्रीमद् भागवतम पढ़ता है उसके अंदर से सारे दोष चले जाते हैं। तो आप लोग भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे धीरे धीरे। अभी नहीं आ रहा होगा रिजल्ट, आएगा, टेंशन मत लो, हमको दिख रहा है थोड़ा बहुत। तो हम रेगुलरली अगर भागवतम पढ़ते हैं तो हमारे अंदर भी वो दोष चला जाता है। और क्यों? क्योंकि ऐसे श्रीमद् भागवतम के अंदर ऐसे भक्त भागवतों का वर्णन है जिनके अंदर कोई दोष नहीं है और जिन्होंने अपने दोषों को किस तरीके से हटाया। तो ऐसे ही महान भक्त भागवत जो हैं वो है ध्रुव महाराज। भक्त भागवत और ग्रंथ भागवत में कोई अंतर नहीं है। एक भक्त भागवत होता है, ग्रंथ भागवत है जिसके अंदर ये, और एक भक्त भागवत होता है जो मतलब भागवतम का चलता फिरता, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पर्सोनिफिकेशन को, हाँ उदाहरण है, फिर चलता फिरता भागवत है वो। उनको जैसे सूरज होता है, सूरज से लाइट निकलती रहती है ना। सूरज, हमारा सूरज थोड़ा सा अलग है, बाकी वैसे सूरज देखा जाए तो उससे लाइट निकलती है, ठीक है। तो वैसे ही जो भक्त भागवत होता है, एक तरीके से कह सकते हैं उनका जो व्यक्तित्व है वो ग्रंथ भागवत से बना हुआ है और उसमें कोई भेद नहीं। तो अब देखते हैं हम ध्रुव महाराज कैसे अपने हृदय के जो तथाकथित रूप से, वो तो महान भक्त हैं लेकिन हमको सिखाने के लिए कैसे अपने हृदय में जो चीजें थी, मैल था, तथाकथित मैल, उसको हटा रहे हैं ताकि हम लोग भी सीख सके और हम लोग हमारे अंदर के हृदय के मैल को पहचान सके। तो इधर ध्रुव महाराज इस चीज के बारे में लेमेंट कर रहे हैं कि देखो कैसे मैंने अपने जो छोटा भाई था उसको अपना दुश्मन माना था, दुश्मन माना था, इसको लेमेंट कर रहे हैं। तो हम लोग जो हैं, हम लोग कितने लोगों को दुश्मन मानते हैं? हम तो हर किसी को दुश्मन मानते हैं।
तो जो भगवत गीता है उसमें एक श्लोक आता है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि अस्त्री शुनि चैव शैपाके चैव पंडिता समदर्शिना। जो लर्नेड पर्सन होता है, जो जिसने वाकई में शास्त्रों के मर्म को समझा हुआ है, वो ब्राह्मण हो, चाहे गाय हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे कुत्ता खाने वाला हो, चाहे एलिफेंट हो, मतलब अलग अलग कैटेगरी उठा ली पूरी, उनमें भी कोई भेद नहीं करता, कोई भेद नहीं करता। कैसे भेद नहीं करता? क्योंकि वो देखता है कि सब जो जीव हैं सब भगवान के अंश हैं। भगवान भगवत गीता में क्या बोलते हैं सारे जीवों के बारे में? क्या संबंध है भगवान का भगवत गीता में? क्या बताते हैं? किसको याद है वो श्लोक? अहम बीज प्रतपिता। हाँ ठीक है, वो भी अच्छा है। और मामे वंश जीव लोग, सारे जो जीव हैं सब मेरे अंश हैं, सब मेरे अंश हैं सनातन रूप से। तो आत्मा के स्तर पर तो इस तरह से समझ सकते हैं। प्रभुपाद कह सकते हैं शरीर के स्तर पर भी अगर देखा जाए तो सबके शरीर किससे बने हुए हैं? सेम 5 तत्वों से, मिट्टी जल वायु आकाश अग्नि से, मिट्टी से बने हुए, मिट्टी में मिल जाएंगे। एक मिट्टी और दूसरी मिट्टी में फिर क्यों भेद कर रहे हैं? जस्ट बिकॉज एक टाइम बीइंग के लिए उसको एक अलग शेप दिया गया है और हमारी वाली मिट्टी को अलग शेप दिया गया है, लेकिन इस है तो मिट्टी दोनों। और अगर आत्मा के स्तर पर देखा जाए तो दोनों भगवान के अंश हैं। भगवान भी सच्चिदानंद है, आत्मा भी सच्चिदानंद है। भगवान के अंदर जितने भी गुण हैं वही सारे कम क्वांटिटी में हमारे अंदर भी है, बाकी सारी आत्माओं के अंदर। तो क्यों भेद किया जाए? तो ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन जो आसुरी जो लोग होते हैं वो भेद करते हैं। आसुरी जो लोग होते हैं और वो मानते हैं कि ये मेरा दोस्त है, वो मेरा दुश्मन है, वो मेरा मित्र है, वो मेरा दुश्मन है। जैसे हम लोग मानते हैं कि भारत वाले बम गिराए पाकिस्तान पे, यस, और पाकिस्तान वाले अगर आधा बम भी गिरा देना, अरे यार दुश्मन, ये लोग यही बेकार, ये लोग 5 गाली दे देते हैं। लोग ऐसे ही खराब है ना? हम लोग ऐसे भेदभाव करते हैं, हम लोगों का ऐसा भेद बुद्धि है। लेकिन जो डिवोटी है उसके लिए, जो महाभागवत है उसके लिए बराबर है, सब लोग बराबर है। अब जैसे आसुरी जो लोग होते हैं उनका एक कैटेगरी बताया गया है भगवत गीता में। भगवत गीता है आप लोगों के पास, इसमें निकालिए एक बार। 16वां अध्याय 13वां वर्ष, 13th वर्ष। जो डिमोनियक लोग होता है वो क्या सोचता है, वो कैसे दुश्मन मानता है, किसी को दुश्मन मानता है, किसी को दोस्त मानता है, वो भेद बुद्धि लगाता है। क्या लिखा हुआ है? थोड़ा कोई जोर से पढ़ेगा। आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और मैं अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं सिद्ध शक्तिमान तथा सुखी हूँ, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी है। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूँगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। अज्ञानवश मोहग्रस्त। और ये आर्ग्यूमेंट ये भगवान ने एक भेद बुद्धि के बारे में एक इसलिए भी बोला है क्योंकि भगवत गीता की शुरुआत में जब अर्जुन समीक्षा कर रहे होते हैं तो क्या बोलते हैं कि ये तो मेरे अपने हैं। ये आर्गुमेंट देते हैं ना, कंपैशन दिखाते हैं। तो कि ये तो मेरे अपने गुरु मेरे टीचर हैं, मेरे भाई हैं, मेरे सगे संबंधी हैं, इनको मैं कैसे मार सकता हूँ। तो वो भेद बुद्धि हटाने के लिए भी भगवान ये आर्गुमेंट दे रहे हैं। देखो, जो जैसे हम लोग भागवत में से भी अलग अलग उदाहरण देखते हैं कैसे कई लोगों ने भेद बुद्धि दिखाया और कई महान भक्तों ने दिखाया कि कोई भेद नहीं किया। जैसे द्रोणाचार्य का उदाहरण देखते हैं हम लोग। द्रोणाचार्य के पास अपने शत्रु का बेटा पढ़ने के लिए आया, शास्त्र विद्या, और वो शत्रु के बेटे को ये पता था कि आगे जाके मेरे को मारेगा, तो भी द्रोणाचार्य ने अपना जो कर्तव्य ब्राह्मण का वो पूरा किया और उसको भी
सारे शास्त्रों का जो गूढ़ विद्या था वो भी उसको सिखाया। क्या नाम था उसका जिसको सीखने आया था? द्रुपद का बेटा धृष्टद्युम्न। ये द्रोणाचार्य का। वहीं हम लोग देखते हैं कि जब वैकुंठ में चतुर्ष कुमार प्रवेश करने के लिए गए तो वैकुंठ के द्वार पे कौन खड़े हुए थे? जय विजय। तो जय विजय ने क्या बोला कि नहीं तुम लोग बाहर के लोग हो, ऐसा क्या बोला था? नहीं जा सकते अंदर। हाँ, नहीं जा सकते हो तुम लोग, बाहर के लोग हो ना, पूछ के आता हूँ मैं एक बार अंदर, ऐसा। तो भेद बुद्धि उन्होंने वहां पे लगाया। तो इस वजह से क्या हुआ उनका, जय विजय का वैकुंठ से पतन हो गया। वैकुंठ से उनको 3 जन्म के लिए फिर यहाँ पे कौन बन के आए वो? हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष और फिर कुंभकर्ण और ये सब अलग अलग राक्षस बन के आए बाद में। फिर 3 जन्मों के बाद में फिर वापस गए। खैर वो भगवान का लीला भी था, उसमें एक ये भी था कि भगवान को लड़ाई करने का कैसे आस्वादन करना था, लेकिन कैसे उन्होंने देखो डिस्टिंग्विश किया और उसके बाद में ये नीचे आ गए। इसमें देखते हैं हम लोग अद्भुत हरि प्रभु जो सेक्शन पढ़ा रहे थे हमको, कौन सा पढ़ा रहे थे प्रभु जी? जड़ भरत वाला। जड़ भरत वाले सेक्शन में देखते हैं कि जड़ भरत जो थे वो पालकी कैरी कर रहे थे किनकी? राजा रघुगुणा की। और रघुगुणा ने उनको अच्छे से डांटा, दिखता नहीं है तेरे को कैसे इधर उधर पालकी हिला रहा है, अच्छे से नहीं पकड़ रहा है। तो भी जड़ भरत ने उनको दयावश भगवत तत्व जो है, आत्मज्ञान का जो ज्ञान है, ये आत्मा का जो ज्ञान है और भौतिक संसार का और आध्यात्मिक संसार के बारे में जो ज्ञान है वो उनको दिया, उल्टा उनका उद्धार किया। जो उन्होंने एक उदाहरण हम लोग देखते हैं, तो ये साधु का स्वभाव है, वो ये नहीं देखते ये मेरा दुश्मन है, इसको क्यों दूं ज्ञान में, इसको क्यों मैं भक्ति के बारे में समझाऊं। शिला प्रभुपाद जी जब विदेश में प्रचार कर रहे थे तो वो लोग पूरा नशा करके आते थे, पूरा ड्रग्स वगैरह लेके आते थे। तो भी शिला प्रभुपाद जी ऐसा नहीं सोचते थे कि कई बार प्रभुपाद जी को भी ऐसा एक उनका शिष्य था, वो प्रभुपाद जी को मारने के लिए आ गया था, ऐसा इतना ज्यादा ड्रग्स ले लिया था, इतना ज्यादा नशे में हो गया था। तो भी प्रभुपाद जी ऐसे किसी का बुरा नहीं चाहे, ऐसा नहीं सोचे कि ये मेरा शत्रु, उल्टा कंपैशनेटली उनके लिए प्रार्थना किया प्रभुपाद जी ने उनको। कई बार कई डिवोटीज, क्योंकि कुछ क्या प्रभाव रहा होगा या फिर कुछ हमको सिखाने के लिए कर रहे नहीं थे, लेकिन कई डिवोटीज पैसा लेके एक बार इस्कॉन का भाग गए, चले गए। एक महाराज थे, फिर वो प्रभु जी बाद में आए तो भी प्रभुपाद जी ने उनको ऐसे नहीं देखा कि ये तो मेरा शत्रु, पकड़ लो इसको, मारो, ऐसा नहीं बोला अपने डिसाइपल को, नहीं, उनको अच्छे से स्वागत किया, उनको क्षमा किया प्रभुपाद जी ने। तो ये साधु का स्वभाव होता है, डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। लेकिन एक प्रचारक जो होता है उसको थोड़ा भेद इस सेंस में करना होता है कि कौन तो इनोसेंट है, इनोसेंट मतलब कौन इस ज्ञान को जानना चाहता है, किसके अंदर जिज्ञासा है, किसको पता नहीं है। कई लोग होते हैं ना, यार मुझे पता नहीं भगवान है या नहीं है, थोड़ा बताना मेरे को यार। ये ऐसे टाइप के लोग, और भगवान के जो भक्त हैं उनमें, और एथिस्ट जो एनवियस लोग हैं, ईर्ष्या करते हैं, उन लोगों में एक प्रचारक को थोड़ा बहुत करना पड़ता है भेद, लेकिन प्रचार के लिए, भगवान की सेवा के लिए। बाकी एक भक्त इन जनरल समझ सकता है, देख सकता है वो कि परमात्मा हर किसी के हृदय में विराजमान है, और हर कोई जो आदमी है वो भगवान का अंश है, जीव, और ये जो शरीर है, भौतिक शरीर, ये नश्वर है। और इसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी का भी उदाहरण देते हैं कि वो एक श्लोक है, यही भालो यही मंद, ये अच्छा है ये बुरा है, ऐसा नहीं भेद बुद्धि लगाते हैं वक्त लोग। और ऐसी भेद बुद्धि किस कारण से होती है, ये भी लास्ट में कारण बताया गया है, और इसमें भी ध्रुव महाराज कहते हैं कि क्यों हुआ। पिछले श्लोक में जैसे हम लोग देख रहे थे कि देवी देवताओं के बारे में बता रहे थे, इस श्लोक में किसके कारण होता है ऐसा?
देवीम माया उपाश्रित है। माया जो होती है ना, उसकी वजह से आदमी ऐसा सोचता है। माया की वजह से, माया का जो प्रभाव होता है, इल्यूजरी एनर्जी, इल्यूजन है ये, भ्रम है ये, भ्रम की वजह से ऐसा आदमी सोचता है। तो इसमें ध्रुव महाराज वही लेमेंट कर रहे हैं कि मैं कैसे माया के अंदर आ गया था, और मैं वास्तविकता जो थी, इसमें कह रहे हैं माया की गोदी में सो रहा था मैं। हम लोग जो है सब माया की गोदी में सो रहे हैं, और हमको क्या करना है? जीव जागो, जीव जागो। और इस डुअलिटी में, द्वंद की वजह से मैं अपने भाई को एक शत्रु के रूप में देख रहा था, और मैं अपने अंदर हृदय में सोच रहा था कि ये सब मेरे दुश्मन हैं। तो डिवोटी के लिए कोई दुश्मन नहीं है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न स प्रिय। सबके लिए बराबर की भावना है उसके लिए, कोई इससे द्वेष नहीं करता, किसी से कोई प्रिय नहीं है एक भक्त के लिए। तो ये भक्त का इक्वल विजन होता है, इक्वल विजन उसका होता है। और भगवान का भी देखो, भगवान का भी इक्वल विजन है। भगवान भी, कौन सा श्लोक है वो, उसमें कहते हैं, हाँ यही है, समम, यही श्लोक है। एक्चुअली भगवान बोलते हैं समम सर्वभूतेषु, मैं सबके लिए बराबर, सबके लिए भगवान भेदभाव नहीं करते। हाँ, भक्त के केस में भगवान थोड़ा देखते हैं। कौन सा श्लोक है वो भक्त की, कि भक्त के केस में मैं थोड़ा डिवोटी के केस में ये अथा माम प्रपद्यन्ते ताम सुते भजाम्यहम्, जो जिस उसमें कैटेगरी, जिस हद तक मेरे को सरेंडर करेगा, मैं उसको उसी तरह से रेसिप्रोकेशन करूंगा। आप कोई ज्यादा सरेंडर करेगा तो ज्यादा रेसिप्रोकेशन करेगा। जैसे भगवान थे, तो भगवान ने कौन सा असुर था जो उनका बेटा था, उसको भी मारा, नरकासुर। क्यों? क्योंकि गलत काम कर रहा था। और वहीं जो प्रहलाद था, वो असुर के पुत्र होने के बावजूद भी उसका उद्धार किया प्रहलाद महाराज का। तो भगवान जो है, वो भगवान ऐसा नहीं देखे कि यार ये मेरा बेटा है खुद का और ये तो असुर का बेटा है, नहीं। भगवान ने देखा कि जो जितना समर्पित है उसको उस लेवल में उद्धार किया भगवान ने। तो ऐसे भगवान से भी हम लोग सीख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न हो?